Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So let us continue with the methods to measure inequality. हम क्वांटाइल रेशियो और पाल्मर रेशियो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. The next measure to study inequality is the Lorentz curve. It was given by a person named M.O. Lorentz. It is the graphical method to represent inequality and it is a square diagram. In this, the cumulative percentage of population is plotted against cumulative percentage of income या फिर एक्सपेंडिचर या फिर वेल्थ. फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में जो आप ये कर्व्ड शेप देख रहे हैं, दिस इज द लोरेंट्स कर्व, दिस कर्व्ड शेप विच इज इन द डायग्राम एंड दिस इज अ स्क्वायर डायग्राम. मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. लॉरेंट्स कर्व के अंदर एक्स एक्सिस पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होती है एंड वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, या फिर हम एक्सपेंडिचर का डेटा भी ले सकते हैं या फिर वेल्थ का डेटा भी ले सकते हैं. द गैप बिटवीन लॉरेंट्स कर्व एंड द 45 डिग्री लाइन, द लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी, इज द इनइक्वालिटी गैप. The farther the curve is from this 45 degree line, the greater is the variability present in the distribution of income. चलिए लॉरेंट्स कर्व को ग्रेटर डेप्थ के अंदर स्टडी करते हैं. This line is the 45 degree line and this is also called line of absolute equality or equal distribution line. It is called 45 degree line because it makes 45 degree angle with the x-axis. This is 45 degree. Now first let us study the line of equal distribution or line of absolute equality. अगर किसी कंट्री का हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम प्लॉट करते हैं एंड उसकी जो ग्राफ है इट कम्स ऑन दिस लाइन, देन वी कैन से कि उस कंट्री के अंदर परफेक्ट इक्वालिटी है, वहाँ पर इनइक्वालिटी मौजूद नहीं है. वाई? बिकॉज अगर हम इस डायग्राम को स्टडी करें, सो लेट अस टेक दिस पॉइंट हियर. 25% of the population has 25% share in the income, which is equal. Let us study this point. What does this point says? Here 50% of the population of this country has 50% share in the total income. So therefore this line shows line of equal distribution or line of absolute equality. No inequality is present if a country is showing a data which lies on this line. However, reality के अंदर no country lie on line of absolute equality. रियलिटी में हमें लॉरेंट्स कर्व देखने को मिलता है. ये देखिए जो लॉरेंट्स कर्व है ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का है. लेट अस स्टडी इस कंट्री के अंदर जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम है उनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है. सो अगर हम इस पॉइंट को स्टडी करें तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ओनली 5% शेयर इन द इनकम. इसी तरह अगर हम नेक्स्ट 25% पॉपुलेशन को स्टडी करें देन its share in the national income is only 10%. Why 10%? क्योंकि ये cumulative percent income का ग्राफ है, तो 15% minus 5%, then this gap will be 10%. तो देखिए इस कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है. फर्स्ट 25% जो पॉपुलेशन है उसका शेयर इन नेशनल इनकम इज ओनली 5%. देयरफॉर जो रियलिटी में हमें देखने को मिलता है दैट इज द लॉरेंट्स कर्व. And Lorentz curve is farther away from the line of equal distribution. ये जो एरिया है, this area shows the inequality. जितना बड़ा ये एरिया होगा उतनी ज़्यादा ही inequality present होगी उस कंट्री के अंदर. Therefore, it is said that the gap between the Lorentz curve and the 45 degree line is the inequality gap. The farther the curve is from the 45 degree line, the greater is the variability present in the distribution of income. More deviation from the line of absolute equality, more is the inequality. Now let us study the Gini coefficient. It was given by a person named C. Gini and it is based on the Lorentz curve which have studied
which we have studied earlier. Now, what is the Gini coefficient? It is the ratio of area between 45-degree line and the Lorentz curve divided by area below the 45-degree line. Therefore, Gini coefficient is the ratio of this area, this whole area, divided by this whole area, the area below the 45-degree line. Gini coefficient varies between 0 and 1. A value of 0 indicates perfect equality, where everybody has the same wealth income, and 1 indicates perfect inequality. That is where one person owns all the wealth in the country. Gini coefficient की value 0 तब आएगी जब ये जो numerator है, the area between 45-degree line and the Lorentz curve, जब ये 0 हो जाएगा. और ये 0 तब होगा जब Lorentz curve और जो line of absolute equality है, they will become 1. और जब लॉरेंट्स कर्व और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या फिर लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी कोइंसाइड करेंगी, ओवरलैप करेंगी, देन दैट इज द स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी. और परफेक्ट इनइक्वालिटी कब आएगी? व्हेन वन पर्सन ओन्स ऑल द वेल्थ इन द कंट्री. तो अगर किसी कंट्री के अंदर 100 लोग हैं और 99 पीपल डू नॉट हैव एनी इनकम, डू नॉट हैव एनी एक्सपेंडिचर, डू नॉट हैव एनी वेल्थ, एंड all the income is earned by only one person, then that country has Gini coefficient of 1, and it is the case of perfect inequality. As per the World Bank, India's Gini index is 35.2, that is 0.35. The ratio is 0.35. Another interesting thing to note here is that for USA Gini coefficient is 0.41. तो इंडिया के कंपैरिजन के अंदर, इंडिया का अगर यूएसए से कंपैरिजन करें तो यूएसए हैज़ मोर इनइक्वालिटी देन इंडिया, बट दिस इज एन एक्सेप्शन. इन जनरल जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, दे हैव मोर इनइक्वालिटीज देन द डेवलप्ड कंट्रीज. मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैव जीनी कोफिशिएंट अराउंड 0.3 ओनली. तो यूएसए के अंदर इनइक्वालिटीज ज़्यादा हैं, बट दैट डजंट मीन कि ऑल डेवलप्ड कंट्रीज हैव हाई इनइक्वालिटीज. इट इज़ जस्ट एन एक्सेप्शन. इन जनरल इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़. तो अभी तक हमने इनइक्वालिटीज़ इन इनकम देखा. नाउ लेट अस स्टडी द इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ. इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ इज मेजर्ड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल. इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है ऑक्सफैम रिपोर्ट रिलीज़ करती है विच मेजर्स द इनइक्वालिटीज़ इन wealth. As per Oxfam report 2019, these are the important data. Top 1% of Indian population accounts for 51% of the total wealth of the country. Wealth जो होती है वो different type की होती है. Physical wealth, for example, land, house, gold, silver, valuables, and the financial wealth such as stocks, shares, etc. According to Oxfam International, top 1% of Indian population has 51% of the total wealth of the country, and top 10% of the Indian population has 77% of the total wealth of the country. हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जो टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, देयर कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम इज अराउंड 30%, बट देयर कंट्रीब्यूशन इन द टोटल वेल्थ इज 77%. तो इसका मतलब वेल्थ के अंदर जो इनइक्वालिटी है, विच इट इज़ मच मोर देन द इनकम इनइक्वालिटी. वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज हाई इन कंपैरिजन टू इनकम इनइक्वालिटी. लेट अस सी द डेटा वंस अगेन. दिस इज द पॉपुलेशन, वेल्थ एंड इनकम चार्ट. top 1% of the population, they account for 51% of the wealth of the nation, and their contribution in the total income of the country is 21% approximately. Whereas top 10% of the population, their share in wealth is 77%, whereas their share in income is 30%. Therefore, inequality in wealth is high and is further increasing in India. How can we say that the inequalities are further increasing in India? So as per the Oxfam report 2019, for the year 2018-19, the wealth of the top 1% of the population grew by 39%, whereas the wealth of the bottom 50% of the population grew by, so it is a typo error, I have corrected it,
So the bottom 50% of the population, their wealth grew by only 3%. Therefore, inequalities in India are increasing. The inequalities have further increased due to COVID-19. It is important to note here that कि COVID-19 से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है और उससे inequalities और बढ़ गई हैं, and the government need to make more efforts to decrease inequalities in India, especially inequalities in wealth. Another important thing to note is that in India, inequality is increasing but poverty is reducing. So the people under poverty are reducing, poor people their number is reducing, but जो inequality है वो बढ़ती जा रही है. इसका कारण ये है कि जो रिच पीपल है, देयर इनकम इज ग्रोइंग एट ए मच फास्टर रेट देन द इनकम ऑफ द पुअर पीपल. जो पुअर पीपल है उनकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है, बट वो इतनी फास्ट रेट से इंक्रीज नहीं हो पा रही है, बहुत ही स्लो रेट है. और जो रिच पीपल है उनकी इनकम बहुत जल्दी फास्ट रेट से इंक्रीज हो रही है, इसलिए इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ती जा रही है. हाउएवर एट द सेम टाइम जो पुअर पीपल है, क्योंकि उनकी इनकम भी बढ़ रही है, भले ही कम बढ़े बट बढ़ रही है, इस कारण से पॉवर्टी जो है वो कम हो रही है. नाउ लेट अस स्टडी द नेक्स्ट इंडेक्स, commitment to reduce inequalities index. It is also given by Oxfam International. It measures commitment or policy priorities of the government to reduce inequalities. Commitment to reduce inequalities index जो है वो measure करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रायोरिटीज को, कि हाउ गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग इट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज. और इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, पब्लिक सर्विस पिलर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पिलर एंड वर्कर राइट्स पिलर. तो बेसिकली इन 3 डायमेंशंस पर कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है. पब्लिक सर्विस पिलर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा कितना है, क्या वो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि जो रिच है दे आर टैक्स्ड एट ए हायर रेट एंड द पुअर आर टैक्स्ड एट ए लोअर रेट और आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन. सो इफ द रिच पीपल आर टैक्स्ड हाई एट ए हाई रेट देन द टैक्सेशन सिस्टम इज मोर प्रोग्रेसिव. इंडिया का जो टैक्सेशन पॉलिसी है इट इज़ बाय एंड लार्ज प्रोग्रेसिव, और इंडिया का इस पिलर पर काफ़ी अच्छा स्कोर है. इट इज़ अराउंड 19 आउट ऑफ 158 कंट्रीज. हावेवर हमारे टैक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ लूप होल्स भी हैं जो कि कंपनीज फ़ायदा उठाती हैं टैक्स बचाने के लिए, बट स्टिल बाय एंड लार्ज आवर टैक्सेशन सिस्टम इज़ प्रोग्रेसिव. द थर्ड पिलर इज़ द वर्कर्स राइट, द लेबर्स राइट. what are the policy decisions taken to safeguard the rights of the workers कि उनका exploitation ना हो by the employers. India की overall ranking on CRI was quite low. We ranked at 129 out of 158 countries, which is very poor. Oxfam International commented that India's health budget was the 4th lowest in the world. And in India, there are weak labor rights and high incidence of vulnerable employment. Most workers earn less than half of the minimum wage. So India need to work in the field of work protecting labor rights. हमारे यहाँ पे most of the labor is employed in the informal sector, जो कि काफ़ी vulnerable होती है, और जो labor के rights हैं वो they are not very much protected in informal economy. And most of the workers they earn less than half of the minimum wage in India as per Oxfam International. Now let us study the causes of inequalities. There are various causes. Let us study one by one. Differences in ownership of land and wealth. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा लैंड और वेल्थ की ओनरशिप में उतना ज़्यादा ही इनइक्वालिटी होगी. फॉर एग्जाम्पल जिसके पास ऑलरेडी लैंड है, हाउस है, ही विल हैव मोर रेंटल इनकम एट्सेट्रा, तो इससे जो है इनइक्वालिटी बढ़ेगी. द सेकेंड इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. बेसिकली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होती, अगर कंसेप्ट ही ना होता प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो कोई इनइक्वालिटी नहीं होती. फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म के अंदर यही कंसेप्ट होता है. सो वन ऑफ द रीजन और कॉजेज फॉर इनइक्वालिटी इज़ द presence of the institution of private property. The next is the inheritance laws. After death of a person, the property is transferred to the next generation through inheritance. तो इससे क्या होती है, inequality जो है perpetuate होती है.
पुअर के पास तो कुछ है नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए, इनहेरिटेंस में देने के लिए, बट रिच के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या है, इट कॉजेज परपिचुएशन ऑफ द इनइक्वालिटी। द नेक्स्ट इज द स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में भी डेप्थ में स्टडी कर चुके हैं। हमें पता है कि जब जो कैपिटल होता है, मतलब प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, अगर उसकी स्कैरसिटी रहती है तो देन इट अफेक्ट्स द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल देन इट विल लीड टू इम्प्रॉपर और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द लेबर। यूएसए के अंदर जो किसान है उसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, इसके कारण वो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड को कल्टीवेट कर पाता है, इस कारण से उसकी इनकम भी ज़्यादा होती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में फार्मर्स लैक capital, that's why they have less income. The next cause is unemployment and poverty. अगर जॉब नहीं मिलेगा या आदमी पुअर होगा तो उसकी कोई इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। Inadequate physical infrastructure. Physical infrastructure such as road, ports, airports, electricity, telecommunication facilities, and social infrastructure such as sanitation facilities, school and हॉस्पिटल फैसिलिटीज़। तो अगर फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर एरिया में कम होगा तो इसका मतलब वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी कम होगी, और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगी तो लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। इस कारण से जो इनइक्वालिटी है विज़-अ-वी अदर एरिया जहाँ पर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फर्स्ट क्लास है, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से डिफरेंस इन एक्सेस टू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड क्रेडिट। अगर प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं मिलेगी देन प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगा, प्रॉपर इनकम नहीं अर्न हो पाएगी, जिससे इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी। ऐसे ही क्रेडिट का मतलब होता है कि जब भी आदमी कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसके पास पैसा नहीं होता, तो उस पैसे के लिए उसको बैंक के पास जाना पड़ता है। अगर बैंक से उस व्यक्ति को लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस एरिया के अंदर मान लीजिए बैंक ही नहीं है, तो वो बिज़नेस भी शुरू नहीं कर पाएगा, भले ही आइडिया बड़ा अच्छा हो। बिज़नेस शुरू नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगी, जिससे इनइक्वालिटीज़ फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। द नेक्स्ट कॉज इज इनहेरेंट डिफरेंसेस इन द एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। हर आदमी अलग होता है और अलग तरीके से सोचता है। सम पीपल आर बोर्न इंटेलिजेंट, सम पीपल हैव राइट एटीट्यूड, सम पीपल हैव नेगेटिव एटीट्यूड। कुछ लोग जो हैं बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। सो देयर इज अ सेइंग बाय बिल गेट्स, इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर देन इट इज़ योर फॉल्ट। तो अगर बिल गेट्स जैसा एटीट्यूड है तो आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा। और अगर कंट्री के मोस्ट ऑफ द पीपल इसी लाइन पर सोचें तो डेवलपमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, जिससे कि इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज द लीकेजेस इन द गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड करप्शन। गवर्नमेंट डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेती है सो दैट लोगों की इनकम जनरेट हो, पॉवर्टी रिडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। बट इन प्रोग्राम्स का बेनिफिट जो है वो ग्रास रूट लेवल तक कई बार नहीं पहुंच पाता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल मैन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। और अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का बेनिफिट ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचेगा तो इनइक्वालिटी फर्दर परचुएट होगी। Now let us study government measures to reduce inequalities in India. Government of India, government of states have taken different initiatives to reduce inequalities. First is the land reform. We will study land reform in greater details, but मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन को एफिशिएंट बनाया जाता है। इंडिपेंडेंस से पहले कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन थी और कुछ लोग जो थे उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। देयरफॉर सीलिंग लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। ये डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट सीलिंग बनाई गई कि भाई एक आदमी जो है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड ओन नहीं कर सकता, और जो एक्सेस लैंड इससे जो मिली वो बाकी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। इसी तरह से डिफरेंट मेजर्स लिए गए लैंड रिफॉर्म्स के, जिससे कि लैंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, साथ ही साथ जो इनइक्वालिटीज़ थी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू लैंड वो भी रिड्यूस हुई। द नेक्स्ट इज सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSMEs। इंडिया के अंदर MSME का बहुत ही पिवटल रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। तो अगर MSME को सपोर्ट दिया जाता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जिससे कि इनकम बढ़ेगी और इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के क्लस्टर प्रोग्राम्स, स्किलिंग प्रोग्राम्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा स्टार्ट कर रखी है MSME सेक्टर के लिए, जिससे कि इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होती है। द नेक्स्ट इज़ द प्रोग्रेसिव टैक्सेस। इंडिया के अंदर रिच पीपल पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, और इस टैक्सेशन से जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स।
जिससे कि इनइक्वालिटीज रिड्यूस होती है। द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज सच एज रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। साथ ही साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दे ऑल्सो स्ट्राइव टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। हालांकि डीपीएसपी जो है वो स्टेट को बाध्य नहीं करते हैं, बट स्टिल डीपीएसपी जो है वो एक स्टेट को एक मॉरली बाइंड करते हैं कि भाई स्टेट को ये पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। अनदर इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स। इंडिपेंडेंस के बाद ये देखा गया कि जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो तो सिर्फ रिच पीपल को ही अवेलेबल थी, जो पुअर पीपल है दे डिडंट हैव एनी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल। तो इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन कर दिया जो प्राइवेट बैंक्स थे उनका। इससे आम लोगों को भी बैंकिंग फैसिलिटी मिली, और अगर बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है देन पीपल टेंड टू सेव, देयर इज मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन, देयर इज मोर फाइनेंशियल डेवलपमेंट विच विल रिड्यूस द इनइक्वालिटी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज भी बनाए, और मैनी ए टाइम दीज पीएसयूज वर एस्टेब्लिश इन द बैकवर्ड एरियाज। जब ये बड़े बड़े अंडरटेकिंग्स बैकवर्ड एरियाज में लगाए गए तो उन एरियाज का भी फर्दर डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि उस एरिया के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हुई। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती है फॉर डिफरेंट एरियाज एंड फॉर डिफरेंट गोल्स। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एमजी नरेगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया मिशन, उस्ताद, नई मंजिल, ये सारी स्कीम्स जो हैं अभी जस्ट आई एम गिविंग अ कर्सरी आइडिया, और हम इन स्कीम्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। रूरल डेवलपमेंट के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स थे जैसे कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम होती है, विडो पेंशन स्कीम होती है। ऐसे ही न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम, एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए आयुष्मान भारत मिशन, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सो एंड सो फोर्थ। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट लेवल पर भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेती है, डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती है, जिससे कि इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनइक्वालिटीज़। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द पॉवर्टी एंड इट्स मेजर्स।